الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق الأزمان والأعمار. الحمد لله التواب والشكور. الحمد لله حليم الصبور. الحمد لله سبحانه، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, my dear youngsters. कैसे हैं आप सब? Am I audible to you? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. सो यस, हमारा आज का सेशन है ऑन हया, ऑन मॉडेस्टी. ठीक है, सो वीर इंशाल्लाह स्टार्ट विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये डिस्कसिव सेशन है. ठीक है, तो आप लोगों ने पहले अपने ओपिनियंस, अपने पॉइंट्स बताने हैं इंशाल्लाह, एंड देन फिर मैं अपने पॉइंट्स बताऊंगी. ओके, सो वील इंशाल्लाह बिगिन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल लाइबा. Taiba, I have given you the option to unmute yourself. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm, I feel like haya is not only about dressing modestly. It is something that naturally comes from our connection with Allah. Okay. Uh, and I feel like real haya is what we have when we are alone, Hmm. like when no one is watching and we still choose to do the right thing Yeah. just because Allah is watching. Yes. Great. Uh, Hmm. in today's world, where immodesty is so common, Hmm. having haya actually protects our dignity. Hmm. That's my understanding of haya. Okay. Great. MashaAllah. Barakallahu feek. Alhamdulillah. Next, I would like to call Ada. So yes, Ada. What is your opinion on haya? Ada, I have given you the option to unmute yourself. So whatever you feel, ठीक है, it's your opinions, your thoughts on haya. That means modesty. ठीक है, so speak up, inshallah. Or do you require some time? Yes, Ada. Do let me know. Okay, I'll ask you in the last, inshallah. ठीक है, चले next, Manal. Yes, Manal. Asha, how many of you require time? Because Ada won't be able to speak up because there are guests at her home. So I would request Manal and Zilaf. So who will speak at first? Come up with your points. Yeah, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Yeah, okay. So what I think modesty is not just only about your dressing, your clothing, but it's more about, your closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. And that should be in our hearts rather than, outside, should be inside
That's most important. Hmm. So this is Yes. what I think about haya. Okay, great, mashallah. Barakallahu feek. Okay, next, Manal बेटा आप बोलेंगी? Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Yes, Manal. Um, I think that haya does not limit, haya does Hmm. not limit to our clothes, eyes, and Hmm. in our gestures, and like we Hmm. should feel it. It should come through us. Yeah, great, mashallah. Barakallahu feek. Next, Afifa. Yes, Afifa. Would you like to speak your opinions, your thoughts? Hmm. आप बोलना चाहेंगी? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, so please speak up. Afifa, kindly respond, and inshallah, I'll share my views and opinions. I guess she won't be able to speak. Okay. So yes, Alhamdulillah, आप सबके points बहुत अच्छे थे. Your points were really, really great. As Laiba said, कि haya means, right? What you said, let me recall. Yes, you said that haya actually comes when you are in your private, when you are in your isolation. That means real haya, because public में तो we all want to look like righteous, pious. हम लोग देखना चाहते हैं कि लोग हमें नेक समझे, right? Even हसन अल बसरी रहमहुल्लाह का एक कॉल है कि डोंट बी द एनिमी ऑफ शैतान इन पब्लिक एंड हिज फ्रेंड इन प्राइवेट. क्योंकि देखिए हम पब्लिक में तो शैतान के एनिमी बने होते हैं ताकि लोग हमें देखें, हम उनको लोगों को देख के बड़ी सुकून की नमाज पढ़ते हैं, राइट? ये सब चीजें हम करते हैं. बट लेकिन जब हम प्राइवेट में होते हैं तो हम क्या करते हैं? सॉन्ग्स देखते हैं, म्यूजिक देखते हैं. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑपोजिट जेंडर से बात कर रहे होते हैं, राइट? तो हमारी जो हया है वो पब्लिक के मुकाबले प्राइवेट में ज्यादा होना चाहिए, राइट? ओके. एंड देन मनाल सेड that the haya does not only means that in your clothes, but it should be in gestures also. Yes, because see, we are living in an environment. हम एक ऐसे environment में रह रहे हैं, एक ऐसे माहौल में जहाँ हमें नॉन मैडम से इंटरेक्ट करना पड़ता है. कहीं पर whether स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, कहीं ना कहीं आपको नॉन मैडम से इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है? तो उस टाइम जो आपके जेस्चर्स होने चाहिए उनमें हया होनी चाहिए, राइट? ऐसा नहीं हो कि like your gestures would be attractive one. तो वो मतलब देखिए, शैतान हर किसी के साथ है, तो वो किसी को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते. तो आपके जेस्चर्स ऐसे होने चाहिए, राइट? नेक्स्ट थिंग, ज़ीलाब सेड कि हया मींस क्लोजनेस टू अल्लाह. देखिए, यस, हया not actually mean closeness to Allah, but when you have haya na, you come closer to Allah. जब आपको हया होगी ना तो आप ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक के करीब आ जाएंगे, राइट? तो दिस इज हया. तो बेसिकली हया कम्स फ्रॉम द वर्ड हयात, ठीक है? हया जो है वो हयात वर्ड से निकला है जिसके मीनिंग होते हैं लाइफ. तो व्हाट इज, हाउ कैन यू रिलेट हया विद लाइफ? एनीवन? आप लोग हया को लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं? एनीवन? आप लोग क्या हया को हयात यानी लाइफ से रिलेट कर पा रहे? बिकॉज हयात कम्स फ्रॉम द वर्ड हयात, मींस लाइफ. एनीवन? Speak up, whatever you feel, whatever, because it's a discussive session, okay? You share your opinions, I share my opinions. We both grew together in this discussion room, okay? Yes, anyone?
अच्छा, I'm giving you 1 minute. You can inshallah think over it and then let me know. How does haya relate with hayat, with life? Okay, let me tell you. देखिए, haya means shyness, means modesty, and it comes from the word hayat, which means life. So we can relate in such a way that life without that our life with haya is a truly pretty beautiful life. Otherwise without haya we are just a living body with a dead soul, because जिसके अंदर हया नहीं होती ना, फिर उसका जो अंदर जो होता है ना, उसका इंटरनल जो उसका बातिन होता है वो बिल्कुल मर जाता है। फिर उसके पास उसको आप कुछ भी कह लें, कैसी भी नसीहत कर लें, कैसी भी उसको आप एडवाइस दे लें, उसको अल्लाह ताला की बातें बताएं, उस पर असर नहीं करती, उसका दिल सख्त हो जाता है। तो बेसिकली हया, द पर्सन विद हया इज ट्रूली लिविंग अ ब्यूटिफुल लाइफ। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीजें अब हम पढ़ते हैं कि हम समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी हया को जो है वो खराब कर सकती है, जो हमारी हया के अगेंस्ट है। बट बिफोर दिस मैं आपको कुछ अहदीस, ठीक है, अहदीस क्या होती है, बेसिकली सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, और कुछ कुरानिक वर्सेस समझाऊंगी। ठीक है। तो बेसिकली एक हदीस है कि इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिपोर्ट करते हैं इसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शाइनेस डज नॉट ब्रिंग एनीथिंग एक्सेप्ट गुड, यानी कि हया जो है वो हमेशा हमारे लिए अच्छाई साबित होती है, खैर साबित होती है, उसमें गुडनेस होती है हमेशा हमारे लिए। ठीक है। और एक और हदीस है कि ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। ठीक है। एक और हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान है 60 odd or 70 odd branches. The uppermost of these is a testimony of faith, that is la ilaha illallah, and the least of them is the removal of harmful object from the road, and shyness is a branch of iman. So क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ईमान की जो 70 ब्रांचेस हैं, ठीक है, इट हैज 70 और 60 ब्रांचेस, जिसमें से सबसे जो ऊपर वाली ब्रांच है वो क्या है, हमारी जो है तौहीद, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है। और जो सबसे नीचे वाली ब्रांच है वो है कि आप रास्ते में से किसी भी हार्मफुल चीज को हटा दें, और उसमें से जो हया है वो भी ईमान की एक ब्रांच है। तो यू कैन इमेजिन कि आपका ईमान तब कंप्लीट होगा जब आपके अंदर हया होगी, राइट। एक और हदीस है कि ये अभी मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं है तो तुम्हारा जो दिल चाहे करो, बिकॉज हया हमें रोकती है बुरे कामों से, राइट। तो ये कुछ अहादीस थी। अब इसके बाद देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझते हैं कि तो हमारी हया को जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्म करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। फर्स्ट थिंग है, सबसे पहली चीज हमारा हिजाब नहीं करना, ठीक है, बिकॉज देखिए जब आप अपने आप को कवर नहीं करते ना तो उससे बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। नॉन महरम का आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना, ठीक है, लोगों का आपको गलत निगाह से देखना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए अराइज होती है कि हम अपने आप को कवर नहीं करते। तो बेसिकली अगर आप लोगों में से बहुत से लोग अबाया पहनते होंगे, बहुत से निकाब भी करते होंगे, और सिर्फ कुछ लोग हिजाब करते होंगे, यानी सिर्फ अपना हेड कवर करते होंगे, और कुछ बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। तो देखिए आप लोग समझते होंगे कि मतलब अगर हम हिजाब नहीं करें तो क्या हुआ, क्या मसला है। देखिए हिजाब नहीं करें तो मसला है, क्योंकि आप खुद अनप्रोटेक्ट कर रही है। अल्लाह ताला ने आपकी प्रोटेक्शन के लिए हिजाब को, अबाया को आप पर फर्ज किया। अल्लाह ने आपको एक वे दिया अपने आप को इस दुनिया के बुरे लोगों से बचाने के लिए। लेकिन अगर आप वही नहीं पहन रहे, अगर आप हया, अगर आप अपने आप को कवर नहीं कर रही, तो दैट मीन्स कि आप खुद को खुद ही अनप्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है। तो अगर अभी आप कुछ नहीं पहनती, लाइक आप जस्ट नॉर्मली घर से निकलती इन योर क्लोथ्स ओनली, तो आप स्टार्ट करें पहले अपना हेड कवर करने से। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली अबाया पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, बिकॉज दीज स्मॉल स्टेप्स रिजल्ट इन आवर बिग सक्सेस। ठीक है।
तो क्या करें आप सबसे पहले जो है अभी सिर्फ आप अपना हेड कवर करना स्टार्ट करते हैं हर जगह पर, वेदर गोइंग आउटसाइड, वेदर इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और वेर एवर यू गो। ठीक है, अभी आप क्योंकि फिर अगर आप इवेंचुअली फिर आप क्या करें, आफ्टर नेक्स्ट स्टेप क्या होना आपका अबाया लेने के लिए। ठीक है, एंड देन द थर्ड स्टेप विल बी कि आप निकाब करें। ऐसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि फेस कवर नहीं करें तो क्या हुआ। देखिए, ठीक है, बहुत से उलमा की ये राय है कि आपको जो है वो फेस कवर ना करें तो ठीक है, कर ले तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एक चीज देखें कि आपके फेस में सबसे ज्यादा ब्यूटी छिपी होती है। योर फेस इज योर, आई वुड से, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। आपका स्माइल, आपकी लोगों की आईज बड़ी प्यारी होती हैं, द फिजिकल फीचर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, तो वो सब फेस से जाहिर होते हैं ना। तो अगर आपका फेस कवर नहीं है तो इट मीन्स कि नॉन महरम आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि गर्मी लगती है। देखिए, अगर आपको दुनिया की गर्मी आखिरत की आंख से बचा सकती है तो देर इज नथिंग, देर इज नो हार्म इन डूइंग दी हिजाब, कोई मसला नहीं है। आज बर्दाश्त कर ले, फिर आखिरत में फिर आपने सुकून से रहना है इंशाल्लाह खैर आफियत से। तो इसलिए फर्स्ट थिंग इज टू कवर योर सेल्फ। सेकेंड थिंग इज, आज बड़ा एक नया सॉर्ट ऑफ ट्रेंड चला है कि अबायास अबायास नहीं रहे। जो लोग अबाया करते हैं वो इतने स्टाइलिश अबाया होते हैं कि उनसे ज्यादा आई वुड से डिसेंट तो हमारे सूट्स होते हैं। मतलब अबाया के अंदर वो डिसेंटेंसी नहीं रही है, वो कि मतलब आप जो है उस अबाया को एज ए सूट, ऐसा फ्रॉक समझ लें, वो बिल्कुल ऐसा लगता है। आई होप आप सबने देखा होगा। तो अबाया का मतलब ये थोड़ा ना कि आप अपने आप को एक्सपोज करें। अबाया का मतलब ये है कि आप जो है वो खुद को कवर करें इन अ ब्यूटिफुल वे। ब्लैक, आई वुड से कि ब्लैक कलर इज द बेस्ट फॉर द अबाया, बट कंप्लीटली अपने आप को कवर करके निकले। अगर आप अबाया को एज अ मीन्स ऑफ ब्यूटी एक्सपोजर कर रहे हैं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, और कुछ अबायास बहुत टाइट भी होते हैं, बहुत टाइट अबायास आजकल की लड़कियां पहनती हैं कि उनकी पूरी बॉडी जो है उससे विजिबल होती है, उनके बॉडी पार्ट्स की पूरा विजिबल होते हैं बॉडी पार्ट्स। तो आपने ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, तो ये आपके हो गए 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट इज कि आपका म्यूजिक, ड्रामास एंड मूवीज एडिक्शन, ये भी आपके हया के खिलाफ है। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रोमांटिक नॉवेल्स एडिक्शन। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, वो तो हम उनको देख रहे हैं, सिर्फ हमारे अंदर थोड़ा ना कुछ हो रहा है। देखिए, आपको पता है जो आपकी आंखें हैं, आपकी जो निगाह है, ये आपके दिल का दरवाजा होती है। ठीक है, अच्छा, आपके माइंड में ना एक आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ये आपके लिए, ये आपको राइट और रॉन्ग का डिसीजन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप जब ऐसी चीजें देखते हैं तो आपका जो दिमाग है ना, आपका जो वो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, फिर आपकी टेम्पटेशंस आप पे हावी होने लगती हैं। ठीक है, तो इसलिए अब आप, अच्छा ठीक है, आप कहेंगे ठीक है मूवीज में हम देख रहे हैं और ड्रामास में हम देख रहे हैं, बट म्यूजिक में हम सुन रहे हैं। देखिए, म्यूजिक में बहुत से लोग ये होता है कि कहते हैं कि म्यूजिक में अगर हम सॉन्ग्स को विदाउट म्यूजिक सुने, मतलब लाइक सॉन्ग होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक लिरिक्स होता है, एक म्यूजिकल पार्ट होता है उसका। तो बहुत से अब तो ये चैनल्स आने लगे हैं कि विदाउट वोकल्स और विदाउट म्यूजिक ओनली वोकल्स का आने लगा ये सॉन्ग्स के लिए। लेकिन मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और भी बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा है कि अनइंटेंशनली भी ना वो म्यूजिक आपके माइंड पे कहीं ना कहीं रिवॉल्व करता है, आपको डिस्ट्रैक्शन कॉज करता है, नमाज में, कुरान में, हर जगह आपको करता है, और आप अनइंटेंशनली बैठे बैठे उसको सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटर नॉट टू लिसन टू म्यूजिक, बिकॉज उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं। आप नशीद सुन सकते हैं, राइट, या फिर आप जरा नज्म, उर्दू की जो नज्म होती है, पोइट्रीज, वो सुन सकते हैं। ठीक है, तो ड्रामास और मूवीज तो आप देखने से आपको वो होता है, आपको ना टेम्पटेशन जागती है कि हम भी ऐसा करें। ठीक है, और आप खुद सोचें, आपकी हया के इस बात को गवाही देगी कि वो मूवीज में, मुझे फिर ड्रामास में, सीरियल्स में एक नामहरम, दो नामहरम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। तो ऐसी मूवमेंट पर तो आप सोचें कि आपको खुद से, मतलब आपको हया नहीं आएगी कि मतलब वो नामहरम है। आपका जो बातिन होगा ना वो खुद इस बात की गवाही नहीं देगा कि आप उनको देखें,
जो कि हलाल रिश्ते में बंधे ही नहीं है आज तक, ठीक है। और नॉवेल्स में क्या है, देखिए नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप कहेंगे कि पढ़ सकते हैं सिर्फ वर्ड से तो पढ़ना है, नहीं, नॉवेल्स आपको सबसे ज्यादा टेम्प्ट करती हैं, सबसे ज्यादा टेम्प्ट, आपके डिजायर सबसे ज्यादा ग्रो करती हैं जब आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, बिकॉज आप उसमें ना इमेजिन कर रहे होते हैं, आपके माइंड में बहुत अच्छे इमेजिनेशन चल रहे होते हैं, तो उससे बहुत हार्म होता है। तो ट्राई टू अवॉइड रीडिंग रोमांटिक नॉवेल्स। पढ़नी है तो बहुत सारी और भी अच्छी नॉवेल्स हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं, और भी होते हैं इस्लाही नॉवेल्स हैं, तो वो पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है जो आपकी हया को आई यस, हया में आपकी ये बात है, पोर्नोग्राफी, न्यूडिटी, जो कि आज बहुत बहुत आम है यंगस्टर्स में, राइट, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको नॉन महरम से बात, नॉन महरम से इंटरेक्शन, हम बिकॉज यंगस्टर्स हैं और हमें ये पता है कि यू नो दिस एज 12 to 18 ईयर्स में आपको ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि आप खुद को इस तरीके से पाते हैं कि आप ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं। लाइक आप अगर स्कूल्स में हैं तो आप बॉयज से अट्रैक्ट होते हैं, बॉयज आपसे अट्रैक्ट होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें मतलब कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह नूर की आयत नंबर 30 and 31, पहले मर्दों को हुक्म दिया, कुल लिल मुमिनीन قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خير بما يصنعون. Tell the believing men to reduce some of their vision and guard their private parts, that is purer for them. Indeed, Allah is fully aware of what they do. तो अल्लाह पाक को पता है, अल्लाह पाक ने हमें बनाया है, अल्लाह पाक को पता है कि हमें जेंडर अट्रैक्शन होना है इस एज में, तो अल्लाह पाक ने पहले ही हमें हुक्म दे दिया, पहले मर्दों को हुक्म दिया कि टेल द बिलीविंग मेन, यानी कि जो मोमिन मर्द है उनसे कह दो कि अपनी निगाहों को झुका कर रखा करें और अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए क्या है, प्योरर है, और इंडीड अल्लाह इज ऑल अवेयर ऑफ व्हाट दे डू। फिर अल्लाह पाक ने सूरह नूर की आयत नंबर 31 में किसको कहा, आप मोमिनी, आप जो है मोमिनात को एड्रेस किया है, यानी कि मुस्लिम गर्ल्स को, यानी ईमान वाले लड़कियों को एड्रेस किया है। अल्लाह पाक ने क्या कहा, वकुल लिल मुमिनाति यगजुज़ना मिन अबसारिहिन्न व यहफज़ना फुरूजहुन वला युबदीना ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिनहा वलयضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. यानी अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, and tell the believing women to reduce some of their vision and guard their private parts and not expose their adornment, except what which necessarily appears thereof, and to wrap a portion of their head covers over their chest and not expose their adornment, except कौन, अब यहाँ पर आपके जो महरम होते हैं उनकी लिस्ट बताई जा रही है, except to their husbands, their fathers, their husbands' fathers, their sons, their husbands' sons, their brothers' sons, their sisters' sons, their women that which their right hand possess, and slaves, and or those male attendants having no physical desire, or children who are not yet aware of the private aspects of women. तो ये आपके जो महरम है उनकी लिस्ट है, आप सूरह नूर की आयत नंबर 31 में जाकर रीड कर सकते हैं। महरम कौन होते हैं, महरम वो होते हैं जिनसे आपका निकाह जायज नहीं होता, यानी जिनके सामने आप खुद को अपनी ब्यूटी को एक्सपोज कर सकते हैं, ठीक है, और नॉन महरम से आपका निकाह जायज होता है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, and let them not stamp their feet to make known what they conceal of their adornment, and turn to Allah in repentance, all of you, O believers, that you might succeed.
तो यानी कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर आपको लिस्ट दे दिया, आपको हुक्म दे दिया कि अपनी निगाहों को नीचा रखें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, खुद को प्रोटेक्ट कर सकेंगे जेंडर अट्रैक्शन से। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमें कभी नॉन महरम से इंटरेक्ट करना पड़े, कुछ करना पड़ता है, आई वुड से कि हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा एक क्रूशियल चीज हो गई है कि कहीं पे भी हम जाएं वहां पे हमें कहीं ना कहीं मेल कोलीग से, मेल आई वुड से अपने मेल क्लास फेलो से इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो उस केस में क्या करें? देखिए, आपका इंटरेक्शन हमेशा रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, यानी कि हंसी मजाक का इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज शैतान हमेशा आपके साथ आपको लगेगा कि मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो नॉर्मली बात कर रही हूँ, मुझे क्या फर्क है, मुझे तो कोई उस इंसान के लिए फीलिंग्स भी नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि शैतान कब आपके दिल में वसवसे डालकर उन टेम्पटेशंस को बढ़ाते, उन डिजायर्स को बढ़ाते, राइट। और हमेशा जब भी इंटरेक्शन करें तो पब्लिकली करें, कभी भी प्राइवेट इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। और हमेशा याद रखें कि आई वुड से कि रात के 12 या 1 बजे कभी भी इंटरेक्शन नहीं करा करें। मैं रात को इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज उस टाइम जो हमारे डिजायर्स हैं वो पीक पर होती है, एट पीक, और उस टाइम बहुत ज्यादा खतरा होता है, बिकॉज रात में गुनाह सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा शैतान जो है वो आपको बहकाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप उस टाइम पे जो है किसी भी नॉर्मल से बात नहीं करें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मेरे कुछ व्यूज थे। अब अगर आपको कुछ और पॉइंट्स ऐड करने तो इंशाल्लाह आप लोग ऐड कर सकते हैं। यू हैव 7 minutes विद यू इंशाल्लाह, देन ये मीटिंग एंड हो जाएगी। तो नाउ हैंड ओवर टू यू ऑल द यंगस्टर्स। हम्म। Yes. Now, please share your views. If any point I, if I have left any point, so you can inshallah let me know. बिकॉज हर इंसान का माइंड जो है वो डिफरेंटली वर्क करता है, हर किसी के अपने ओपिनियंस होते हैं, व्यूज होते हैं। तो यू कैन इंशाल्लाह स्पीक अप, यू हैव 6 minutes विद यू इंशाल्लाह। यस माय डियर यंगस्टर्स, स्पीक अप इंशाल्लाह। हम्म। चैट बॉक्स में बताते हैं आपको कोई आंसर्स, कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई भी आपको अपना ओपिनियन शेयर करना हो इंशाल्लाह, तो यू कैन। हम्म। Yes, my dear youngsters, speak up. How will you build your confidence otherwise? अगर आप बोलेंगे नहीं, यहाँ तो सिर्फ आई वुड से कि 4 to 5 लोग हैं। When you will speak publicly, because आगे चल के इंशाल्लाह आप सबको दाई इस्लाम बनना, इस्लाम की दावत देनी है लोगों को, तो तब तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। So try to build your confidence from this level, that आगे चल के आप और दीन की खिदमत कर सकें with full confidence, with full dedication, with full determination. Okay, Jazakallah for your feedback. But if you have any question, any one of you, Ada, Afifa, Laiba, Zilaf, anyone, please come up. Or with your opinions, inshallah. We have 5 minutes left with us. Come up, hurry up. Then inshallah we'll end the class, inshallah. Okay, Ada said, what about teachers? Your male teachers, ठीक है. See, you can interact with them in a respectful way. Frankly, see, I would say कि ठीक है, आजकल आप frankly, आप इतना frank भी नहीं, थोड़ा बहुत frankness ठीक है कि क्लास में टीचर भी आपसे frankly बात कर लेता है, क्योंकि ताकि क्लास को informative बनाने के लिए, तो वो ठीक है. Okay, Afifa, I'll give you the chance to unmute yourself, inshallah. First of all, I would like to question Ada's answer, okay? So Ada's question is, what about teachers? See, you can interact with them respectfully, and if you are getting frank with them, तो उसकी भी लिमिट्स होती है. देखिए, कुछ मजाक ऐसे होते हैं जो आप नॉर्मली मतलब टीचर बच्चे से करते हैं और बच्चा जो है वो टीचर से करता है, बिकॉज आई वुड से कि स्टूडेंट और टीचर का जो एक
वो होता है कनेक्शन, और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा बायस कनेक्शन होता है। तो यू कैन इंटरेक्ट विद देम, यू कैन टॉक टू देम फ्रैंकली, बट ऑलवेज बी इन योर लिमिट्स। बाउंड्रीज बनाए, उस बाउंड्री को अगर कोई भी क्रॉस करे तो उसको आपने कभी क्रॉस होने नहीं देना है, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज, यस अफीफा, आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट योरसेल्फ, सो या। यस अफीफा, Ada, is your question clear? Afifa, I have given you the option to unmute yourself. लेकिन हाँ, हमेशा हर चीज में अपनी बाउंड्री को बना के रखिएगा, ऑलवेज, किसी से भी आप इंटरेक्ट करें इंशाल्लाह। ओके, यू कांट, व्हाई सो? देखिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, लेट मी चेक व्हाट्स द प्रॉब्लम। आई हैव आस्क्ड, सॉरी, I have given you the option to unmute yourself. Yeah. Hurry up, you have 2 minutes. Otherwise, are you able to unmute yourself, or should I open it for everyone? Allow participants to. I don't know. Yeah, might problem of connection. So you can inshallah message me on WhatsApp. Okay, and then if you have any opinions, you can type me or you can record the audio. I'll inshallah post it in the group with the fellows. Okay, or otherwise, if you have any question, you can inshallah ask me personally. Okay. So yes, anyone else? Any doubts? Any question, or should we end the class? So अपने आप को आप सब ने प्रोटेक्ट करके रखना है हमेशा, हर तरीके से। आपको पता है शैतान इस तरीके से भी आता है कि एक बहुत पायस इंसान होगा, ठीक है, बहुत पायस आपका क्लास फेलो होगा, या फिर आपका कोई भी मेल कोलीग होगा, आपका टीचर होगा, और वो आपसे ऐसी ऐसी, मतलब होता है शैतान की ट्रिक्स होती है कि वो आएगा और फिर वो ऐसे आपसे बहुत अच्छी सी बातें करेगा, एंड आपको लगेगा दिस पर्सन इज परफेक्ट फॉर मी, और फिर आप क्या होगा, यू विल एंड अप, नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, अल्लाह पाक ऐसा कभी ना करे, बट इट्स, आई हैव सीन प्रैक्टिकली बहुत से लड़कियों के साथ कि दे एंड अप इन हराम रिलेशनशिप। क्योंकि शैतान कहता है कि भाई नेक इंसान है, तुम्हारे चॉइस का है, तुम्हारे क्राइटेरिया का है, तो यू कैन डू इट। हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, बट ये गलत काम आगे चल के कहीं ना कहीं अडल्ट्री यानी जिना तक पहुंचा देते हैं इंसान को। सो ट्राई नॉट टू indulge in any of the interaction with non-mahram that would lead you to be immodest, inshallah. Okay, so I hope now I should end the class. So let's recite the dua. Subhanallah wa bihamdihi. Okay, what Laiba is saying, I'm in girls school, and now I feel very privileged after this session. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Jazakallahu khairan kaseera for your feedback. Okay, Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillah.